دعاؤں میں کیسے یاد رکھنا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں اللہ نے دعا خود سکھائی ہے، اور میں اس طرح دعا کرو، رب ارحمہما، اے میرے رب میرے ماں باپ پر رحم فرما۔ کیسے؟ کما ربا یعنی صغیرہ، جس طرح کہ میں بچپن میں تھا، میں چھوٹا تھا، تو میری حالت پہ مجھ پر انہوں نے جس طرح کرم فرمایا، رحم فرمایا، مجھ پہ شفقت کی، مولا میرے ماں باپ پر تو اس طرح شفقت فرما۔ ہاں جی، تو یہ دعا ہی ہے، یہ اس آیت پر عمل ہے کہ جو اپنے ماں باپ کے لیے بندہ دعا کا اہتمام کرتا ہے۔ ہاں جی، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ حیات ہیں، ہمیں پتہ ہے ہم نے خدمت کرنی ہے، آپ سے ہم نے سنا ہے کیسے ادب کرنا ہے، ہمیں پتہ ہے ان کی خدمت کیسے کرنی ہے، ہمیں پتہ چل گیا، یا رسول اللہ یہ تعلیم ہمیں آپ نے عطا فرمائی، ہم نے سیکھا، اب یہ فرمائیے ماں باپ فوت ہو جائے تو کیا پھر بھی کوئی ان کا حق ہم پر باقی رہ جاتا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا مرنے کے بعد بھی حقوق ہوتے ہیں، ان میں پہلا سرکار نے فرمایا ان کا جنازہ ادا کرو، اور دوسرا فرمایا اپنی زندگی میں ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہیے ذرا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو یہ حضور کا حکم ہے، سرکار علیہ السلام کا حکم ہے کہ ماں باپ فوت ہو جائے تو اپنی دعاؤں میں بھولنا نہیں ہے، ان کو یاد رکھنا ہے۔ تو ماں باپ کے لیے دعاؤں کا سلسلہ جاری کرنے کے لیے ایک طریقہ یہ بھی عطا کیا گیا ہے کہ جب نماز پڑھو 5 وقت کی نماز ادا کرو، تم نماز پڑھتے رہو گے، ساتھ ساتھ تمہارے ماں باپ کے لیے دعائیں بھی ہوتی رہیں گی۔ سبحان اللہ۔ ہاں جی، فرمایا نماز بھی ادا کرو اور اپنے ماں باپ کے لیے دعا بھی کرو۔ وہ دعا کیا ہے؟ قرآن پاک میں موجود ہے، اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں، دین کے لیے دعا کرتے ہیں، اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتے ہیں، اور قرآن میں بہت ساری نبیوں کی دعائیں موجود ہیں، بہت سارے نبیوں کی بہت ساری دعائیں جو ہیں وہ قرآن میں موجود ہیں، لیکن 2 نبیوں کی دعائیں وہ قرآن میں موجود ہیں جو انہوں نے اپنے ماں باپ کے لیے کی ہیں۔ 2 نبیوں کی دعائیں، ایک حضرت نوح علیہ السلام کی دعا اور دوسرا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا۔ یہ وہ دعائیں ہیں جو انہوں نے اپنے ماں باپ کے لیے کی ہیں۔ تو آپ اس بات کو اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ ماں باپ کے لیے دعا کرنا تو نبیوں کی سنت ہے، نبیوں کی سنت ہے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ دعائیں اتنی پسند آئی ہیں، اللہ نے قرآن میں آیتیں بنا کر نازل فرما دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا سورہ نوح کی آخری آیت میں فرمایا رب اغفر لی ولی والدی، مولا مجھے بھی معاف فرما، میرے ماں باپ کو بھی معاف فرما۔ یہ کون دعا کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی۔ کون؟ حضرت نوح علیہ السلام، جن کو آدم ثانی کہا گیا، اور پھر دوسری دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 13ویں پارے میں موجود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں ربنا اغفر لی ولی والدی، اے میرے رب، اے ہمارے رب، ہمیں بھی معاف فرما، مجھے بھی معاف فرما، اور میرے ماں باپ کو بھی معاف فرما۔ یہ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم جد الانبیاء علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو یہ دعا اتنی پسند آئی، توجہ رکھنا اس جملے پر، اللہ تعالیٰ کو یہ دعا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے قرآن میں نازل فرما دی، اور ہمارے آقا مولا کو یہ دعا اتنی پسند آئی کہ حضور نے اس دعا کو نماز میں لازم فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ کو پسند آئی، قرآن میں آیت بنا دیا، اور حضور کو دعا پسند آئی، حضور نے اس دعا کو نماز میں لازم قرار دیا، فرمایا جب نماز مکمل کرو تو آخر میں اپنے ماں باپ کے لیے دعا کر دو۔ ہاں جی، ماں باپ کے لیے بھی دعا ہو جائے گی، نماز بھی مکمل ہو جائے گی۔ یعنی آپ اس بات کو اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ عبادت خدا کی ہے، دعا ماں باپ کے لیے، عبادت خدا کی بندہ کر رہا ہے۔ ہاں جی، بندے کہتے ہیں نہیں جی کسی کو تو پکارنا ہی نہیں چاہیے، تو حضور نے نماز میں اپنے والدین کے لیے دعا کرنے کو حکم دیا، ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین، مولا ہمیں بھی معاف فرما اور ہمارے ماں باپ کو بھی معاف فرما۔ ہاں جی، تو اس بات سے ماں باپ کی عظمت اور ماں باپ کا مقام جو ہے وہ بندے کے سامنے ظاہر ہوتا ہے کہ ماں باپ کا مقام کتنا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی، سیکنڈ لاسٹ نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ہاں جی، جب آپ کی ماں پر تہمت لگی، حضرت مریم علیہ السلام پر جب تہمت لگی تو آپ کی طرف اشارہ کیا، قرآن پاک میں پورا واقعہ
सूरह मरियम में मौजूद है। जब लोगों ने तोहमत लगाई, उन्होंने कहा अब बताइए ये क्या है, तो आपने फरमाया मुझसे ना पूछो, इसी से पूछ लो, जो आया है इसी से पूछ लो। उन्होंने कहा भला बच्चा भी कोई बोलता है? फरमाया बच्चे नहीं बोलते, नबी बोलते हैं। बच्चे नहीं बोलते हैं, आम बच्चे होते नहीं बोलते, नबी बोलते हैं, क्योंकि नबी नबी होता है। माँ के पेट में हो फिर भी नबी है, अगर पंगूड़े में हो फिर भी नबी है, अगर ऐलान नबूवत करने से पहले हो फिर भी नबी है, ऐलान नबूवत करने के बाद हो फिर भी नबी है। और इसको इस तरह भी कह लें, अगर वो कब्र में हो फिर भी नबी है, कब्र में हो फिर भी नबी है। इशारा किया। तो अब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पंगूड़े में कलाम करते, उसको कुरान में बयान किया गया। आप कहते हैं कि आतानी यल किताब काला इन्नी अब्दुल्ला, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। आतानी यल किताब, मुझे किताब दी गई है। वजअलनी नबिय्या, और मुझे नबी बनाया गया है। और आगे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का कौल ये मौजूद है कुरान में। आप कहते हैं वबर्रम बिवालिदती, मुझे मेरे रब ने हुक्म दिया है कि मैं अपनी माँ के साथ हुस्न सलूक के साथ पेश आऊँ। ये अल्लाह के नबी को हुक्म है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मुझे मेरे रब ने हुक्म दिया है। और ये कब कलाम कर रहे हैं? पंगूड़े में। मेरे रब ने मुझे हुक्म दिया है, क्योंकि आपके बाप तो थे नहीं, तो माँ का ही नाम लेना था ना। हाँ जी, तो माँ का जिक्र किया। फरमाया मुझे मेरे रब ने माँ से हुस्न सलूक करने का, यानी उनके साथ अच्छा बर्ताव करने का हुक्म दिया है। तो ये वो हुक्म है जो रब ने नबियों को भी दिया है। हाँ जी, नबियों को भी हुक्म दिया है कि अपने माँ बाप का अदब हुस्न सलूक के साथ पेश आओ। और फिर इसको एक और बात से भी देखिए, हजूर अलैहिस्सलाम का फरमान है, हदीस पाक बड़ी मशहूर है, आपने कई बार सुनी होगी। मैं इससे जो बात निकालना चाहता हूँ मैं उसकी तरफ इशारा करता हूँ। सरकार से पूछा गया, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम मुझ पर सबसे ज्यादा अल्लाह रसूल के बाद किसका हक है? तो सरकार ने फरमाया तेरी माँ का। फिर पूछा, फरमाया तेरी माँ का। फिर पूछा, फरमाया तेरी माँ का। फिर पूछा, फिर फरमाया तेरे बाप का हक है। तो 3 बार हुजूर ने माँ का जिक्र फरमाया। उलमा कहते हैं इसलिए माँ का जिक्र फरमाया है कि माँ औलाद से मोहब्बत में इतनी गिरफ्ता और इतनी गुम हो जाती है कि उसको अपनी जात की खबर ही नहीं रहती है कि मेरी भी कोई जात है। आप अपना नसब देख लें, किसी बंदे का शजरा उठा कर देख लें, उसके शजरे में उसकी माँ का नाम नहीं आएगा, बाप का आएगा। हाँ जी, ये फलां का बेटा है, ये फलां का बेटा है, ये फलां का बेटा है। कभी किसी ने माँ का नहीं जिक्र किया। ये फलां का जो है, ये फलां औरत का बेटा है, बाप का नाम आता है। जब बाप का बेटे पर नाम आता है तो खिदमत तो माँ करती है, बाप वो खिदमत नहीं करता। जो खिदमत माँ करती है, रात को उठ उठ कर कपड़े तब्दील बाप नहीं करता, माँ करती है। रात को जब बच्चा कपड़े गीले कर देता है और बिस्तर गीला कर देता है, तो उस गीले बिस्तर पर आकर बाप नहीं सोता, माँ सो जाती है और बच्चे को जो है वो वहां सुला देती है, जो कपड़ा खुश्क होता है, जो गीला नहीं होता। यानी इतनी तकलीफें बर्दाश्त करना ये बाप का काम नहीं है, ये सिर्फ माँ का ही काम है। हाँ जी, इन तकलीफों के बावजूद। और फिर एक और बड़ी मजे की बात है, 4-5 बेटे हैं ना, तो हर एक की अलग-अलग पसंद है। एक चावल पसंद करता है, तो दूसरा जो है वो जो और कोई से पसंद करता है, दूसरा गोश्त पसंद करता है। अब सुबह से शाम तक माँ जो है ना वो हर बच्चे की फरमाइश पसंद पूरी कर रही है। इसकी क्या फरमाइश है जी? चावल पसंद है, उसको चावल पका के दे रही है। दूसरे को क्या पसंद है? इसको खीर पसंद है, उसको खीर पका के दे रही है। एक क्या जी, इसको क्या पसंद है? इसको जो है इसको गोश्त पसंद है, तो उसकी वो फरमाइश पूरी कर रही है। सुबह से शाम तक माँ अपनी औलाद की पसंदीदा जो है उनकी पसंदें पूरी कर रही है। कभी किसी ने पूछा कि माँ की क्या पसंद है? हाँ जी, कभी किसी ने पूछा कि माँ की क्या फरमाइश है? माँ ने तो अपनी पसंदीदा शय कभी ज़ाहिर ही नहीं की। माँ की औलाद के बाद एक ही पसंद होती है कि औलाद ने खा लिया, जो बच गया वही माँ का पसंदीदा, कोई माँ का पसंदीदा खाना है। यानी माँ ऐसा एक रहमत का घना दरख्त है ना कि जिसके नीचे बंदा सारी जिंदगी बैठा रहे, दिल फिर भी नहीं भरता। और माँ के पास बैठकर
जो खाना खाने का मजा आता है ना, वो 5 स्टार होटलों में बैठकर वो मजा नहीं आता। जो माँ के पास कच्चे चूल्हे पर रोटियां खाने का जो है वो मजा आता है, वो बड़े बड़े होटलों में भी नहीं आता, क्योंकि ये माँ की शफकत है। तो मैं आज कर रहा था कि हुजूर ने 3 बार माँ का जिक्र क्यों किया। उसकी एक वजह ये है कि माँ का औलाद पर नाम नहीं बोला जाता, माँ की तरफ से औलाद का शजरा जो है वो नहीं लिखा जाता, बाप की तरफ से लिखा जाता है। लेकिन फिर भी माँ इतनी शफकत और इतनी तकलीफें बर्दाश्त कर रही है, पसंदीदा खाने छोड़ रही है, अपनी तबीयत को छोड़ रही है। अपनी तबीयत का ख्याल कोई नहीं है, अपने कपड़ों का ख्याल कोई नहीं है, अगर ख्याल है तो बेटे के कपड़ों का ख्याल है। ये सब कुछ छोड़कर भी उसका बेटे पर नाम नहीं आता। तो इसलिए हुजूर ने फरमाया बेटे पर अगर सबसे ज्यादा अल्लाह रसूल के बाद किसी का हक है तो वो उसकी माँ का हक ज्यादा है। और फिर एक और बात देखिए, हुजूर अलैहिस्सलाम को फरमाने, सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो बंदा माँ बाप की कब्र की ज़ियारत कर ले, हदीस में जुमे के अल्फाज हैं कि जुमा के दिन माँ बाप जो उनमें से कोई एक जो फौत हो गए हैं तो उनकी कब्र को ज़ियारत कर ले। तो हदीस के अल्फाज है, मैं मफहूमात कर रहा हूँ, जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह ताला वो बेटा जो कब्र पे आया है उसके गुनाह भी माफ फरमा देता है। जो माँ बाप जो उनमें से एक जो कब्र में है उनके गुनाह भी रब माफ फरमा देता है। तो तवज्जो करने वाली बात ये है कि जिस माँ बाप की कब्र को देखने से बंदे के गुनाह माफ हो जाए। हाँ जी, गौर करने वाली तो ये बात है, कभी हमने गौर ही नहीं किया, हदीस से सुनते सुनाते रहते हैं। इस बात पे गौर करें माँ बाप का मकाम कितना है। ओए उनकी कब्र को देख ले बंदा गुनाह माफ हो जाते हैं, तो जो जिंदगी में उनकी खिदमत कर ले, हाँ जी, फिर उनका मकाम कितना होगा। सिर्फ कब्र को देखने से, वो मिट्टी की जो ढेरी है, लोग कहते हैं कब्रों पे जाने से क्या मिलता है, मैंने कहा माँ बाप की कब्र पे बंदा जाए तो गुनाह माफ हो जाते हैं अगर अल्लाह के रसूल के रोज़े पर चला जाए। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, अल्लाहु अकबर। माँ बाप की कब्र पर बंदा चला जाए, बंदे के गुनाह मिट जाए, तो जिंदगी में जो उनकी खिदमत करे। तो यहाँ हदीस से बात याद आती है, सरकार ने फरमाया जो माँ बाप का चेहरा मोहब्बत से देख ले अल्लाह ताला मकबूल हज का। आजकल हज कितने को होते हैं कि 12-14 लाख रुपया लगता है, इधर 14 लाख रुपया है और उधर सिर्फ ज़ियारत करना है, माँ बाप का चेहरा देखना है। तो माँ बाप का चेहरा देखना इतना कीमती है कि 14 लाख रुपया एक तरफ रखो और एक तरफ माँ बाप का चेहरा देख लो, ये बराबर है। हाँ जी, मकबूल फिर भी नहीं है, यानी मकबूल है लेकिन पता नहीं है। हाँ जी, पता नहीं है कि ये कबूल होगी कि नहीं होगी, लेकिन माँ बाप का चेहरा देखा, सुभान अल्लाह। हाँ जी, यानी आप इस बात को समझ सकते हैं कि माँ बाप का चेहरा देखना कीमती कितना है। ये 14 लाख से भी कीमती है। हाँ जी, तो जिनको अल्लाह ताला ने माँ बाप की नेमत से नवाजा, ज़ियारत कीजिए, किया कीजिए और मोहब्बत से कीजिए। हाँ जी, अल्लाह ताला रहमतें अता फरमाएगा दुनिया में भी और आखिरत में भी। सुभान अल्लाह। हुजूर अलैहिस्सलाम के एक उम्मती हैं, ताबी हैं, सहाबी नहीं, हजरत अवैस करनी उनका नाम है। कहिए जरा सुभान अल्लाह। हाँ जी, हजरत अवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ताबी बने, सहाबी नहीं बने। 2 बार मदीना शरीफ आए लेकिन हुजूर की ज़ियारत नसीब नहीं हुई। अब आप जितने उलमा मर्जी पढ़ कर देख लें, हर एक लिखते हैं कि हजरत अवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए लेकिन ज़ाहरी जो ज़ियारत है वो नसीब नहीं हुई। किस वजह से नसीब नहीं हुई? उनकी माँ बूढ़ी थी, उनकी खिदमत करते थे। आप इस बात पर भी गौर करें कि हुजूर का दर अक़दस है, कहाँ जाना है? सरकार की खिदमत में जाना है। जहां बंदा बैठ जाए तो सारी दुनिया के वलियों से बंदा आला हो जाता है। हुजूर की ज़ियारत करनी है। यहाँ बेटा कहाँ गया है जी? बेटा गया हुआ है तबलीग करने के लिए। घर माँ बाप बूढ़ा है, उनको दवाई लाकर देने वाला कोई नहीं, बेटा तबलीग को निकला हुआ है। हाँ जी, कहाँ जा रहा है? पीर साहब के पास जा रहा है। क्या कराना है जी? दुआ करवानी है।
माँ बाप घर बूढ़ा है, उनकी खिदमत करने वाला कोई नहीं है, उनको खाना देने वाला कोई नहीं है, उनका बिस्तर साफ करने वाला कोई नहीं। ये पीर साहब के दरबार पे जा रहे हैं, पीर साहब से फैज बाद में मिलेगा, पहले माँ बाप की तो खिदमत कर ले। हाँ जी, अब देखें, एक तरफ सरकार का दर अक़दस है और दूसरी तरफ माँ है। हाँ जी, एक तरफ हुजूर की बारगाह है और दूसरी तरफ माँ की खिदमत है। हजरत ख्वाजा अवैस करनी माँ से अर्ज करते हैं, अम्मी जान इजाजत हो, मैं हुजूर की ज़ियारत न कर रहा हूँ, यहाँ जो उनके जिक्र में उनकी याद में तड़पता हूँ, तो इजाजत दे ना, मैं ज़ियारत कर रहा हूँ। तो बिल आखिर माँ ने इजाजत दे दी और साथ कहा, बेटा जल्दी आ जाना है, मेरा ख्याल करने वाला कोई नहीं है, जल्दी आ जाना। तो हजरत अवैस करनी सर मदीना शरीफ हाजिर हुए, सरकार अलैहिस्सलाम के दर अक़दस पे हाजिर हुए, तो पता चला कि सरकार अलैहिस्सलाम मौजूद नहीं है। हाँ जी, उन चीजों की ज़ियारत की जिनकी निस्बत हुजूर से थी। हाँ जी, ज़ियारत की, वहां से जल्दी वापस चले आए। किसी ने पूछा जल्दी क्यों जा रहे हो, और मैं इसलिए जा रहा हूँ कि माँ ने कहा था बेटा जल्दी आ जाना, कहीं माँ न नाराज हो जाए, इसलिए जल्दी जा रहा हूँ। हाँ जी, तो अब हजरत अवैस करनी वापस आके 2 बार इस तरह हुआ, लेकिन ज़ियारत नसीब नहीं हुई। ये ज़ाहरी ज़ियारत की बात है, हकीकी ज़ियारत तो अल्लाह ने उनको अता फरमा दी थी। हाँ जी, और फिर दूसरी बात देखे, हजरत अवैस करनी माँ की खिदमत में हाजिर हुए। माँ ने पूछा बेटा ज़ियारत हुई, तो बताया मामला आज की कि नहीं हुई। तो माँ ने कहा बेटा ठहर जाता, तो आज की अम्मी जान आपने तो फरमाया था कि जल्दी आ जाना। तो मेरा विधान कहता है कि माँ ने ये कहा होगा कि फिर तेरा भी मकाम ये होगा कि उस नबी से मूसा अलैहिस्सलाम भी मोहब्बत करेंगे, उस नबी से ईसा अलैहिस्सलाम भी मोहब्बत करेंगे, उस नबी से नूह अलैहिस्सलाम भी मोहब्बत करेंगे, लेकिन वो नबी तुझसे मोहब्बत करेगा। और मुस्लिम शरीफ के हदीस पाक है, सरकार अलैहिस्सलाम यमन की तरफ जो है, आप यमन में रहते थे ना, यमन की तरफ जो है मुंह करके सरकार फरमाया करते थे, मुझे यमन की तरफ से अपने आशिक की खुशबू आती है। हाँ जी, ये कौन से आशिक हैं? हजरत अवैस करनी है। और एक दिन हुजूर अलैहिस्सलाम ने दुआ की, मौला हमारे यमन को भी बरकत दे, मौला हमारे शाम को भी बरकत दे। सरकार ने जब दुआ की ना, तो एक बंदा खड़ा हो गया, उसने कहा हुजूर नजद के लिए भी दुआ कर दीजिए। तो सरकार ने फिर दोबारा दुआ दोहराई और मैं मौला हमारे यमन को भी बरकत दे, हमारे शाम को भी बरकत दे। तो उन्होंने फिर आज की हुजूर ये नजद के बारे में भी दुआ की दीजिए। तो तीसरी बार सरकार ने फरमाया नजद के लिए बरकत की दुआ नहीं, क्योंकि यहाँ से शैतान का सीग निकलेगा। और यमन के लिए भी हुजूर ने दुआ की और शाम के लिए भी हुजूर ने दुआ की। उलमा ने लिखा ये शाम के लिए दुआ क्यों थी, यमन के लिए दुआ क्यों थी? कहते हैं शाम में हुजूर की उम्मत के 40 अब्दाल रहते हैं जिसके लिए हुजूर दुआ कर रहे हैं, और यमन में हुजूर के आशिक हजरत अवैस करनी रहा करते थे। इसके लिए यमन के लिए भी हुजूर ने दुआ की है। क्यों? कि वहां हुजूर की उम्मत के वली रहते हैं। तो फिर पता चला ना, जहां उम्मत के हुजूर की उम्मत के वली रहा करें, जहां हुजूर की उम्मत के वली रहते हैं, उसकी तरफ हुजूर की भी नजर होती है, रब की भी रहमत होती है। हाँ जी, हुजूर की भी रहमत उस शहर की तरफ होती है जहां अल्लाह के वली रहते हैं। और फिर हजरत अवैस करनी की बात छिड़ी है, तो मैं थोड़ी सी बात और खोलता हूँ। कहिए जरा सुभान अल्लाह। वक्त का मुझे एहसास है इंशाअल्लाह ताला जल्दी ही जो वक्त पर ही गुफ्तगू खत्म होगी, तो कहिए जरा सुभान अल्लाह। हाँ जी, तो हजरत अवैस करनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, बज़ाहिर मैंने बात आज की कि ज़ियारत बज़ाहिर नसीब नहीं हुई, लेकिन हमारे शुरा कहते हैं कि जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले और ये बड़े नसीब की बात है। हाँ जी, बज़ाहिर तो हुजूर की बारगाह में हाजिर नहीं हुए, लेकिन हजरत फारूक आजम और हजरत शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा हुजूर के दोनों सहाबी हैं। सरकार अलैहिस्सलाम ने इन दोनों से फरमाया कि मेरी उम्मत का एक वली है जिसका नाम अवैस है, उससे आपकी मुलाकात होगी, उससे अपने लिए भी दुआ करवा लेना, मेरी उम्मत के लिए भी दुआ करवा लेना। अल्लाह अकबर। यहाँ एक और बात की तरफ भी इशारा होता है। सरकार अलैहिस्सलाम सारे नबियों के बादशाह हैं,
सैयदुल अंबिया, इमामुल अंबिया, ये हुजूर का लक़ब है जिसकी तरफ आला हज़रत इशारा करते हैं। सबसे आला हो आला हमारा नबी, सबसे बाला हो आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी है, सारे रसूलों से आला है। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं लिकुल्ली नबी जिन मुस्तजाबुन, हुजूर ने फरमाया हर नबी की हर दुआ कबूल है, हर नबी की हर दुआ कबूल है। सरकार दुआ कर देते, सरकार ने दुआएं की भी अपनी उम्मत के लिए, इसमें शक भी कोई नहीं है। सरकार अलैहिस्सलाम ने दुआएं की, वो भी मकबूल है। लेकिन हुजूर ने सहाबी को भेजा ताबी के पास, यानी हुजूर ने अफजल को भेजा है, जो उनसे अफजल नहीं है ना मकाम में, हजरत अवैस के पास भेजा, वो ताबी है, सहाबी ताबी से अफजल है। लेकिन सरकार बताना चाहते हैं कि मेरी उम्मत के वलियों का ये मकाम है कि मैं अपने प्यारे प्यारे यारों को उनके पास भेज रहा हूँ, और मैं जब मेरे यार उमर वली के पास जाएंगे, जब मेरा यार अली वली के पास जाएगा, तो मेरी उम्मत को क्या होता है वली के पास जाने से? तो वलियों के पास जाना तो हुजूर के सहाबा की सुन्नत है। हजरत अवैस वली है, हाँ जी, और हजरत शेर खुदा वो भी सहाबी है, हजरत फरूक आजम भी सहाबी है, जलीलुल कदर सहाबी है, और फिर इन दोनों यारों को ही भेजा है, और किसी सहाबी को नहीं भेजा। उसकी वजह ये है, हुजूर ने जमाने वालों को बताया है कि हजरत अली और हजरत फरूक आजम, इनमें कोई दुश्मनी ना समझना, इनमें तो आपस में बड़ी प्यार और बड़ी मोहब्बत की बातें हैं। हाँ जी, तो हजरत ग्रामी दोनों यार मुलाकात हुई हजरत अवैस से। मुख्तलिफ रवायात है, जब मुलाकात हुई ना, तो हजरत शेर खुदा और हजरत फरूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, हुजूर ने जो निशानियां बताई थी वो निशानियां भी पूरी थी। हाथ पर बर्छ का निशान, हाँ जी, और कपड़े फटे पुराने। जब निशानियां देखी ना, तो अब हजरत फरूक आजम और हजरत शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु महवे गुफ्तगू हुए, तो एक सवाल हजरत अवैस करनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत फरूक आजम और हजरत शेर खुदा से किया। कहा कि आपने तो हुजूर की ज़ियारत की है। उन्होंने कहा की है, इसमें कौन सा शक है? हाँ जी, और राजकर हुजूर की ज़ियारत की है। हाँ जी, तो हजरत अवैस रज़ियल्लाहु ताला ने एक सवाल किया, कहा कि मुझे ये बताइए, आपने तो ज़ियारत की है, जरा ये तो बताइए कि हुजूर की दाढ़ी शरीफ में बाल सफेद कितने थे? ये जरा सवाल, एक सवाल कौन कर रहे हैं? जिन्होंने बज़ाहिर हुजूर को देखा भी नहीं है। और किन से सवाल कर रहे हैं? जिन्होंने आंख भी हुजूर की गोद में खोली है। हाँ जी, हाँ जी, और किन से सवाल कर रहे हैं? जो हर वक्त इस्लाम कबूल करने के बाद हुजूर के साथ रहने वाले, इस्लाम में दूसरा नाम पाने वाले, दूसरी शख्सियत हजरत फरूक आजम से सवाल है कि बताइए हुजूर की दाढ़ी शरीफ में सफेद बाल कितने थे? तो हजरत शेर खुदा फरूक आजम को देखने लग गए, और हजरत फरूक आजम हजरत शेर खुदा को देखने लग गए कि ये सवाल कैसा है कि हमने इस अंदाज से और नजर भर के कभी हुजूर के चेहरे को देखा ही नहीं है। हाँ जी, जब चेहरे पे तजस्सुस आया ना, तो हजरत अवैस करनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुद ही बोले, पर मैं इस सवाल का तुम्हें नहीं ना पता तो मैं ही बता देता हूँ। तुम्हें नहीं ना पता तो फिर सवाल का जवाब है मैं ही बता देता हूँ। तो उन्होंने फरमाया फिर बता कितने बाल सफेद थे? तो हजरत अवैस करनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं हुजूर की दाढ़ी शरीफ में ज्यादा से ज्यादा बाल जो थे, सफेद जो बाल हुए थे सारी जिंदगी 63 साल की उम्र में, वो 17 से ज्यादा नहीं थे। अच्छा, ये कौन बता रहे हैं? जिन्होंने बज़ाहिर हुजूर को देखा ही नहीं है। हाँ जी, और यहाँ अगर मैं हजरत अल्लामा इकबाल, डॉक्टर इकबाल कलंदर लाहौरी की बात करूं तो आप फरमाते हैं कि माँ की बंदा खिदमत करे तो मकाम क्या मिलता है? पर मैं माँ की खिदमत करने से मकाम ये मिलता है, अगर बंदा यमन में रहता हो कुर्ब हुजूर का फिर भी मिल ही जाता है। दुनिया के जिस किनारे में बंदा मर्जी रहता हो, जो माँ की खिदमत करने वाला है, अल्लाह ताला उसको अपने महबूब का कुर्ब अता फरमा देता है। अल्लाह अकबर, ये सरकार अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं। और फिर माँ की दुआ का असर, सुभान अल्लाह, माँ के उठे हुए हाथ जो है वो अल्लाह ताला रद्द नहीं फरमाता। हदीस का मफहूम है, हुजूर ने फरमाया माँ की दुआ, मुसाफिर की दुआ, मजलूम की दुआ जो है वो अल्लाह की बारगाह में मकबूल ही मकबूल होती है। और एक हदीस में बाप की दुआ का जिक्र है, फरमाया बाप का जब औलाद के हक में हाथ उठता है अल्लाह ताला रद्द नहीं फरमाता, अल्लाह ताला की बारगाह में वो दुआ मकबूल ही मकबूल होती है। हाँ जी, वो दुआ मकबूल होती है जो बाप करे अपनी औलाद के लिए।
तो बाप औलाद नाराज होकर करेगा या खुश होके? हाँ जी, जब हम उनको खुश करेंगे तो दुआएं निकलेंगी। और मैं कहता होता हूँ कि दुआ करवाई नहीं जाती, दुआ ली जाती है। दुआ लेनी चाहिए, दुआ करवानी नहीं चाहिए। और दुआ कैसे लेनी वो आपको पता है, वो खिदमत करके ही मिलती है। हाँ जी, माँ बाप की बंदा खिदमत करेगा तो फिर दुआएं निकलेंगी, फिर दुआएं निकलेंगी और दुआएं मिलेंगी, और वो दुआएं बेलौस अपने आप निकलेंगी। और जो ऐसी दुआएं होती हैं वो अल्लाह ताला की बारगाह में मकबूलियत के दर्जे को पहुंच जाती हैं। और मैं बिल्कुल आखिरी बात करूं, अल बिदाया व निहाया में अल्लामा इब्ने कसीर रहमतुल्लाह ताला अलैह एक वाकया नकल करते, रवायत लिखते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक औरत हाजिर हुई, और वो औरत अपना घर बार सब कुछ छोड़कर सरकार की खिदमत में हाजिर हो गई। और जब सरकार की खिदमत में हाजिर हुई ना, तो उस औरत के साथ एक छोटी सी उम्र का 10-12 साल का बच्चा जो है वो भी उसके साथ था। आकर सरकार की बारगाह में हाजिर हुई, कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गई, और सरकार की खिदमत में अर्ज की, हुजूर मेरा कोई नहीं है, अब मेरे आप ही हैं, मेरे आप ही हैं। और सरकार अलैहिस्सलाम को फरमाने आली शान है, मिशकात में हदीस पाक मौजूद है, हुजूर अलैहिस्सलाम अपनी सहाबियात यानी जो गुलाम औरतें थी सरकार की, उनसे खिताब फरमा रहे थे। और सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसके 2 बेटे फौत हो जाएं वो क़यामत के दिन उसकी शफात करके अपने माँ बाप को जन्नत में लेकर जाएंगे। एक सहाबिया खड़ी हो गई, आज की हुजूर जिसका एक फौत हो, जिसका एक फौत हो, तो सरकार ने फरमाया एक भी लेकर जाएगा, एक भी लेकर जाएगा जन्नत में। तो एक खड़ी हो गई सहाबिया, आज की या रसूलल्लाह माँ बाप कुर्बान, जिसके 2 फौत हो गए वो जन्नत में लेकर जाएंगे, जिसका एक फौत हो गया वो जन्नत में लेकर जाएगा, और जिसका कोई नहीं। ये सरकार की बारगाह में सवाल अर्ज किया है, वल्लाह है वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से, आज की या रसूल अल्लाह जिसके 2 बेटे फौत हो गए बचपन में वो जन्नत में लेकर जाएंगे, जिसका एक फौत हो गया वो जन्नत में लेकर जाएंगे। या रसूल अल्लाह माँ बाप कुर्बान हो, जिसका कोई नहीं है उसका कौन है? तो सरकार ने फरमाया, जिसका कोई नहीं उसका मैं जो हूँ। सरकार ने फरमाया, जिसका कोई नहीं उसका मैं जो हूँ। आनी जो लजपाल आका है, सरवर कहूँ के माले को मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले जेबा कहूँ तुझे। तो हजरत ग्रामी हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में उसने आकर, उस सहाबिया जो बन गई औरत आकर हाजिर हुई, आज के हुजूर मेरा अब कोई नहीं। सरकार ने फरमाया, तेरा कोई नहीं तो मैं जो हूँ। हुजूर ने अपनी खिदमत के लिए कबूल कर लिया, घर में उसका आना जाना था। हुजूर अलैहिस्सलाम की अज़वाज की खिदमत में वो बीबी औरत रहने लग गई। हुजूर अलैहिस्सलाम ने खिदमत में उसको कबूल कर लिया। उसका एक बच्चा वो असहाबे सुफ़ा में शामिल हो गया, असहाबे सुफ़ा में बैठने लग गया, पढ़ने लग गया, दीन सीखने लग गया। और कुछ वक्त गुजरा कि अजल आ गई, मालकुल मौत ने उसकी रूह कब्ज़ कर ली। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत के तहत उसकी रूह कब्ज़ हुई, फौत हो गया। अब फौत हो गया, सहाबा कराम ने उसके चेहरे पे कपड़ा डाल दिया, और किसी ने कहा कि जाओ इसकी जो माँ है ना उसको बताओ कि तेरा बच्चा जो है वो फौत हो गया है। माँ की दुआ में असर कितना होता है, तवज्जो करना। हुजूर अलैहिस्सलाम की इस खादमा, इस कनीज, इस लौंडी को जब खबर हुई कि तेरा बेटा, तेरा बच्चा जो है वो फौत हो गया है, तो उसने रोना धोना शुरू नहीं किया, उसने वावेला शुरू नहीं किया। हुजूर की सहाबिया थी, साबरा थी, अपने बेटे के जो लाश थी उस बेटे के जिस्म पर आई, और बेटे के जिस्म पर, बेटे के पास खड़ी होकर उस औरत ने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा दिए। औरत ने अल्लाह ताला की बारगाह में हाथ उठा दिए। जब हाथ उठाए, और दुआ बड़ी पुरमग्ज थी, दुआ बड़ी जो है वो दिल को हिला देने वाली थी। अल्लाह ताला की बारगाह में वो माई, हुजूर की सहाबिया, हुजूर की लौंडी अर्ज करती है, मौला तेरे महबूब की खातिर मैंने घर छोड़ा, तेरे महबूब की खातिर मैंने रिश्तेदार छोड़े, तेरे महबूब की खातिर मैंने अजीज छोड़े, तेरे महबूब की खातिर घर बार, रिश्तेदार, भाई बहन, वालिदैन सब कुछ छोड़कर तेरे महबूब की बारगाह में आई। तेरे महबूब की खातिर जो है सब कुछ छोड़ दिया, दुनिया को छोड़ दिया। एक जिंदगी का आसरा था,
اب وہ بھی جاتا رہا ہے، اگر یہ فوت ہو گیا، اگر یہ جاتا رہا تو رشتہ دار مجھے تانا دیں گے، عزیز مجھے تانا دیں گے کہ کس نبی کا کلمہ پڑھا ہے کہ ایک تیرا بیٹا سہارا تھا وہ بھی چھن گیا ہے، وہ بھی فوت ہو گیا ہے، کون سا دین قبول کیا ہے کہ تیرا جو آسرا تھا بیٹا، بڑھاپے کا جو سہارا تھا وہ بھی چھین لیا گیا ہے، کیسا دین قبول کیا ہے؟ تو وہ مائی ابھی دعا کر رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے روح کو لوٹا دیا، بچہ منہ سے کپڑا کہتا ہے اور اپنی ماں سے کہتا ہے امی چپ بھی کر جا، ماں چپ بھی کر جا۔ تو یہ ماں کی دعا میں اثر ہے۔ گویا کہ وجدان یہ کہتا ہے کہ جبریل نے عرض کیا ہوگا مولا تیرا قدرت تیری قدرت کا قانون ہے، تیرا بنایا ہوا اصول ہے کہ جس کی روح قبض کر لی جائے، جس کی روح لے لی جائے وہ لوٹائی نہیں جاتی قیامت سے پہلے۔ مولا تیرا اصول ہے کہ روح لوٹائی نہیں جاتی۔ گویا رب نے فرمایا ہو اے جبریل تو اصول کو دیکھ رہا ہے اور میں کنیز رسول کو دیکھ رہا ہوں۔ میرے محبوب کی لونڈی نے ہاتھ اٹھا دیے ہیں، اگر خالی لوٹ گئے تو لوگ تانا دیں گے، خالی لوٹ گئے تو لوگ باتیں کریں گے کہ یہ محبوب کی لونڈی ہے، اس کا یہ مقام ہے کہ اس کی دعا قبول نہیں ہوئی۔ فرمایا نہیں، میرے محبوب کی خادمہ نے ہاتھ اٹھا دیے ہیں، اصول بدلنا آسان ہے لیکن اس کے خالی ہاتھ نہیں موڑنے، یہ ایک بچے کی ماں ہے، اس کے ہاتھ خالی نہیں موڑنے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو جو ہے وہ زندگی لوٹا دی۔ صحابہ کرام کہتے ہیں پھر اس کے بعد وہ بچہ ہمارے ساتھ کئی سال تک زندہ بھی رہا اور حضور کی بارگاہ میں حاضر بھی رہا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ حضور علیہ السلام کی لونڈی، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں چند دن گزارنے والی عورت کا یہ مقام ہے کہ اس کی دعا رد نہیں ہے، تو پھر رب کے محبوب کی دعا کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ رے کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ رے کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا کہ رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بزرگوں کو ان کے